ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ 4P, ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਕਿਹੜਾ? ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੇ ਪਊਗੇ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਮੇਬੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ ਥਰਡ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਦ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੀ, ਰਾਈਟ, ਇਟਸੈਲਫ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗਰੰਟੀਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ, ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਉਹ, ਰਾਈਟ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪਊਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗੂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਗੇ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਦੈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰਸ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਊਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਫਕੋਰਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੈਰੰਟਿਡ ਆਰਟੀਕਲ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਬਣਦਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ 4B, ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਅ ਪਲੇਨ, ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ डिस्प्लेसमेंट वैक्टर, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ 4A 'ਚ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਲਮੋਸਟ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਨया ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ। ਬਾਏ ਦ ਵੇ ਆਪਾਂ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ 'ਚ ਹੀ ਸਟਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪਲੇਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦੀ। ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਦੇयर इज़ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ P ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ओरिजिन ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ओरिजिन ਤੋਂ। ਸੋ ਆਫਕੋਰਸ ਜੇ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦ ओरिजिन। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ओरिजिन ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਸਨ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਤੇ ਤਾਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤਾਂ ओरिजिन ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆਪਾਂ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ओरिजिन ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਂਡ ਫਰਸਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ represented by the vectors. So this is a vector which is the position vector, ठीक है। पोजीशन वैक्टर ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਲੈਂਥ ਤੋਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦੀ? ਇਸ ਐਰੋ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਆਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ, ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਕਾਲ ਇਟ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ओरिजिन ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਦਿਸ ਲੈਂਥ ਲੈਟਸ ਕਾਲ ਇਟ ਸਮੋਲ ਵਾਈ, ਓਕੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ओरिजिन ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਇਨ ਦ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਐਂਡ ओरिजिन ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਸਮੋਲ ਵਾਈ ਯੂਨਿਟਸ ਦੂਰ ਹੈ ਇਨ ਦ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਏ ਦ ਵੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਕਸ ਐਂਡ ਵਾਈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 4th A ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਸ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना। एक्स आप दसता डिस्टेंस,
ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ आई कैप दस रहा अपन आई कैप एक ऐदा का यूनिट वैक्टर है जिहड़ा किहड़ी डायरेक्शन च हुंदा है इन द एक्स एक्सिस सिमिलरली प्लस वाई जे कैप वाई किधर नूं है उपर वाल नूं वाई डायरेक्शन वाल सो वो अपन यही दस रहा है सो बिकॉज इट इज़ अ वैक्टर आ दो क्वांटिटीज अपन की दोगियां मैगनीट्यूड एंड आई कैप एंड जे कैप अपन की दे रहे हैं ऑफकोर्स डायरेक्शन बिकॉज इन्हों का मैगनीट्यूड तो वन ही है जस्ट इन्होंने मल्टीप्लाई होकर की देना है दैट इज जस्ट द डायरेक्शन दीज आर यूनिट वैक्टर्स जिहड़े आ दो वैक्टर्स ने दे आर यूनिट वैक्टर्स ऑलरेडी हालांकि आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं जेडे भी वैक्टर्स उपर इदा उपर इदा कैप पाई होंगी आई कैप जे कैप के कैप दे आर यूनिट वैक्टर्स उन्होंने सिर्फ एंड सिर्फ की होंगी है डायरेक्शन होंगी है मैगनीट्यूड सिर्फ वन होंगे गॉट इट सो इस तरीके नाल देखो आप की कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन नू रिप्रेजेंट कर सकते हैं है ना आर वैक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हुण जे आपां गल करिए अगले चीज़ की दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट वैक्टर ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ 'ਚ ਲਿਟਰਲੀ ਇੰਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਰਾ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ इस पर्टिकुलर पॉइंट तो उन्हें चलना शुरू किया राइट एंड किसी भी इदा रैंडम पाथ वाल वो जा रहा है ओके इनिशियल पॉइंट यही है मतलब एंड जा रहा है उपर वाल गॉट इट हुण जे आपां गल करिए इत्थे कोई भी दो पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर कर लैने उहदे पाथ दे विच लेट्स से दिस इज़ द पॉइंट ए एंड एक पर्टिकुलर पॉइंट आपां होर कंसीडर कर लिया लेट्स से दिस इज़ द पॉइंट बी सो ए इज़ द इनिशियल पॉइंट बी इज़ द फाइनल पॉइंट एंड मन के चलते हैं ए तो बी तक जान दे विच परसन नूं जिहड़ा टाइम लग्या सीगा दैट इज़ डेल्टा टी ओके डेल्टा टी क्यों कंसीडर किया बिकॉज देखो लेट्स सपोज बिकॉज एकदम ए तो उन्हें चलना शुरू नहीं किया हैगा चलना तो कितों भी उन्हें शुरू किया हो सकता सो आप जनरली मान लिया कि ए पर्टिकुलर पॉइंट के उत्ते सीगा एट टाइम टी एंड बी पॉइंट ते सीगा टी प्लस डेल्टा टी बिकॉज जान च उन्होंने थोड़ा जिहा टाइम लग्या होगा टी चों थोड़ा जिहा होर ऐड होया होगा सो इत्थों स्टार्ट होकर इत्थे पहुँचने से कितना टाइम लग्या कि मैं पता लगूगा ए चो माइनस करके ना सो इस पर्टिकुलर टाइम से जो आप क्वांटिटी माइनस करेंगे ऑफकोर्स टी विल गेट कैंसल्ड आउट एंड विल लेफ्ट विद डेल्टा टी सो ए तो बी तक जाने के विच परसन नूं कितना टाइम लग्या दैट इज़ डेल्टा टी राइट एंड हुण जे आपां देखो डिस्प्लेसमेंट वैक्टर की गल करिए तो डिस्प्लेसमेंट वैक्टर के लिए ऑफकोर्स सब तो पहला आपां नूं दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वैक्टर्स ड्रॉ करने पैंदे इनिशियल पॉइंट का जो आपां कंसीडर किया एंड फाइनल पॉइंट ठीक है so this is the initial position vector let's call it r I cap या sorry r I vector not cap तो unit vector हो जाएगा ठीक है this is the initial position vector similarly जब b point ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ let's call it r f vector that means position vector है but final ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ displacement vector ਦੀ displacement that means initial point ਤੋਂ final point किधर ਨੂੰ है ना सिंपली मतलब यही बनता है ना अपना सो आप किदा रख सकते हैं देखो इनिशियल पॉइंट ए सीगा फाइनल पॉइंट ए है सो इन्होंने दोनों पॉइंट्स को आप करांगे इदा ज्वाइन कर देंगे लेकिन ऑफकोर्स किहड़ी डायरेक्शन से ये जो पोजीशन वैक्टर है पॉइंट करेगा ए तो बी दे वाल बिकॉज ए तो बी दे वाल परसन जा रहा है सिमिलरली लेट्स सपोज बी तो स्टार्ट होकर ए दे वाल जा रहा होंदा तो आही जिहड़ा मैं आ वैक्टर ड्रॉ किया है लास्ट से ए बी वैक्टर वो नीचे वाल पॉइंट कर रहा होंदा राइट सिंपल जी गल है ठीक है हुण जिहड़ा आह है ए बी वैक्टर द ए बी वैक्टर यही तो हैगा अपना डिस्प्लेसमेंट वैक्टर ना बिकॉज आही द डिस्प्लेसमेंट की बॉडी ने इनिशियल पॉइंट ए सीगा फाइनल पॉइंट ये है डिस्प्लेसमेंट की होंगी है लिटरली चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड ऑफकोर्स स्ट्रेट लाइन पाथ होंदा है इनिशियल एंड फाइनल बॉडी दे विच सॉरी इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दे विच राइट सो ए बी वैक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वैक्टर सो इन्हों आपां किवें लिखांगे डेल्टा आर वैक्टर ऑफकोर्स पोजीशन वैक्टर आप इदां ही रिप्रेजेंट कर सॉरी डिस्प्लेसमेंट वैक्टर की गल मैं कर रहा डिस्प्लेसमेंट वैक्टर आप इस तरीके रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा आर वैक्टर ठीक है ये चीज़ याद रखनी है जो सिंपल आर वैक्टर रखा है दैट इज़ द पोजीशन वैक्टर जो डेल्टा आर वैक्टर लिखा हुआ दैट इज़ चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन पोजीशन की होंगी अपनी ऑफकोर्स दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट सिंपल जी गल है गॉट इट हुण जे इस पर्टिकुलर चीज़ में मैथमेटिकली आप रिप्रेजेंट करना है तो किद्दां करांगे देखो डेल्टा अच्छा ये तो पहला आ लिखण तो पहला आप की करते हैं आ जिहड़ा डायग्राम है ये जरा ऑब्जर्व करो सब तो पहला आर आई वैक्टर
प्लस इत्थे लिख देंगे आप डेल्टा आर वैक्टर दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। जे आ वाली क्वांटिटी दे विच मैं आ चीज़ ऐड करदा डेल्टा आर वैक्टर तो ऑब्जर्व करो की मिलेगा बाय द ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन। सब तो पहला आर आई वैक्टर, सो इत्थों स्टार्ट होकर देखो आर आई वैक्टर, इत्थे पहुँच गए आप ए पॉइंट ते, फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फर्दर की ऐड करता डेल्टा आर वैक्टर, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डेल्टा आर वैक्टर ऐड करके मैं कितने पहुँच जाऊँगा एट पॉइंट बी विच विल बी इक्वल टू आर एफ वैक्टर, बिकॉज आर एफ वैक्टर ने भी वही करना सीगा स्टार्टिंग तो बी ते ही पहुँचाना ਆਪਾਂ ਨੂੰ। बेसिकली आ दोनों चीज़ां सेम ने ना, ट्रायंगल ऑफ वैक्टर एडिशन आई तो कहता जे पहला वैक्टर आ हैगा दूसरा वैक्टर लेट्स सपोज ए है तो दोनों का वैक्टर सम किहड़ी डायरेक्शन च पॉइंट करेगा इन दिस डायरेक्शन, सिंपल। सो ही आप इत्थों किया कैलकुलेट की करना सीगा आपां डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। डिस्प्लेसमेंट वैक्टर कितना आ जाऊगा, सिंपली आपां की करांगे डेल्टा आर वैक्टर इज इक्वल्स टू बस आ वाली क्वांटिटी नूं दूसरी साइड भेज देंगे एंड वी विल गेट आर एफ वैक्टर माइनस आर आई वैक्टर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। लेकिन आपां नूं इत्थे इस पर्टिकुलर चैप्टर से जो भी चीज़ नूं रिप्रेजेंट करना है ना आपां यूनिट वैक्टर की फॉर्म से रिप्रेजेंट करना है। आ तो ऑलरेडी आपां किया होया राइट, जिहड़ा फोर्थ ही चैप्टर किया है वो खोल के देखोगे जो तुसीं नोट्स वो आ एक्सप्रैशन आप ऑलरेडी ड्राइव किया सीगा, नथिंग न्यू। बट हुण इत्थे आपां आर एफ एंड आर आई की वैल्यू पुट करांगे। आर आई एंड आर एफ कौन है बेसिकली, पहले आप देखिए ना पोजीशन वैक्टर किवें फाइंड करते हैं, बस उसी तरीके नाल आह या दोनों पोजीशन वैक्टर्स नूं फाइंड करके आपां की करना है सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो देखो डेल्टा आर वैक्टर दैट इज इक्वल्स टू आर एफ वैक्टर। आर एफ वैक्टर जी मैं गल करा, अच्छा सब तो पहले आपां करते हैं ये जिहड़े पॉइंट मैं इत्थे लिखे हुए हैं ए एंड बी, ये कोआर्डीनेट्स इत्थे लिख देना राइट। आ टी एंड डेल्टा टी वाला पार्ट मैं इत्थों इरेज करता एंड लेट्स सपोज जिहड़ा ए पॉइंट है ये कोआर्डीनेट्स ने x1 एंड y1 एंड जिहड़ा बी पॉइंट है वो कोआर्डीनेट्स ने x2 एंड y2 राइट। एंड आ भी चीज़ मैं इत्थे मैंशन कर देना जिहड़ा अपना आर आई वैक्टर है एंड जिहड़ा अपना आर एफ वैक्टर है उन्होंने वैल्यूज़ की ने। देखो आ पोजीशन वैक्टर है इनिशियल वाला कि मैं आप लिख सकते हैं दैट कैन बी रिटन एज x1 इंटू आई कैप प्लस y1 इंटू जे कैप है ना। सिमिलरली जो आर एफ वैक्टर है उन्होंने आप कितना लिख सकते हैं दैट इज x2 आई कैप प्लस y2 इंटू जे कैप। आ चीज़ अपनी बन रही है ना। बस हम इन्होंने दोनों चीज़ों आप यूज़ करके की करना है इतने पुट करना है जस्ट सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो आर एफ दैट इज x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप माइनस आर इनिशियल वैक्टर दैट इज x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। हम बस की करना देखो आई कैप वाली चीज़ों को इकट्ठा कर लाँगे एंड जे कैप वाली टर्म्स को कंबाइन कर लाँगे एंड वी विल गेट x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ डेल्टा आर वैक्टर दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। एंड आई गैस पूरे चैप्टर से आ भी चीज़ आप थोड़ी जी डिस्कस की हुई है ना। लेकिन ये तो बाद हम जिन्ना पार्ट है वो सारा न्यू है। पोजीशन वैक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट वैक्टर हो गया, ये तो बाद कौन आता है फर्स्ट दैट इज द वेलोसिटी वैक्टर, ठीक है। वेलोसिटी वैक्टर आप बिल्कुल डील नहीं किया है फोर्थ ए चैप्टर के। सो हम आप देखते हैं कि जिमें आप पोजीशन वैक्टर को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया आ पोजीशन वैक्टर्स ने, जिमें आप डिस्प्लेसमेंट वैक्टर को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया आ जिमें अपना डिस्प्लेसमेंट वैक्टर है राइट इन द टर्म्स ऑफ द यूनिट वैक्टर्स। सिमिलरली वेलोसिटी वैक्टर को आप मैथमेटिकली कितना रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वैक्टर, इन टर्म्स ऑफ सॉरी यूनिट वैक्टर्स। लेट्स सी नैक्सट टॉपिक जो अपना है दैट इज द वेलोसिटी वैक्टर इन अ प्लेन। जिमें आप पोजीशन वैक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वैक्टर को 2 डायमेंशनस दे विच एक्सप्रैस किया इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप दैट मीनस वो कंपोनेंट फॉर्म दे विच है ना। सिमिलरली हम आप वेलोसिटी वैक्टर के नाल सेम ही उदा कर लगे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ द कार्टेशियन प्लेन। वेलोसिटी की गल हो रही है दैन ऑफकोर्स कॉमन सेंस नाम तो पता लग रहा है कि जो बॉडी है जो ऑब्जेक्ट है दैट इज मूविंग। सो मान के चलते हैं किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन से जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है एंड लेट्स सपोज किसी पर्टिकुलर टी टाइम पर सीगा वो इत्थे ए पॉइंट पे एंड किसी होर टाइम पे वो सीगा एट पॉइंट बी। टोटल टाइम लेट्स सपोज ए तो बी दे जान च उन्होंने लग्या डेल्टा टी, ओके। बाय द वे डेल्टा टी क्यों कंसीडर आप किया होया बिकॉज देखो मान के चलो जो ए पॉइंट है उत्थे पार्टिकल सीगा एट टी सेकेंड्स, टी कुछ भी हो सकता 5, 10 न्यूमेरिकल वगैरह से लेट्स सपोज गिवन हो सकता, ठीक है। लेकिन बी पॉइंट पे ऑफकोर्स वो एग्जैक्टली टी टाइम से तो होएगा नहीं,
मान लो जे इत्थे 5 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 6 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 7 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਹ ਟੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਸੀਡਰ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ A ਤੋਂ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ 'ਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ, ਟੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਕੈਂਸਲਡ ਆਊਟ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਲੈਫਟ ਵਿਦ ਜਸਟ ਡੈਲਟਾ ਟੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਜਾਣ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। एंड अगेन जो आप पोजिशन वैक्टर्स ड्रॉ करने हों, दिस इज द इनिशियल पोजिशन वैक्टर आर आई वैक्टर एंड दिस वन इज द फाइनल पोजिशन वैक्टर, सो आर एफ वैक्टर। एंड सिमिलरली जो आप डिस्प्लेसमेंट वैक्टर ड्रॉ करना है तो दोनों पॉइंट्स में ज्वाइन कर देंगे एंड डायरेक्शन किधर होगी डिस्प्लेसमेंट वैक्टर की टूवर्ड्स बी, बिकॉज इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से ऊपर वाले जो ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है। एंड लेट्स कॉल इट डेल्टा आर वैक्टर, जिमें पहला आप इनू नोटेशन दी सी एग्जैक्टली सेम, हाले तक कुछ भी आप नवा नहीं किया है। ठीक है, हुण आप आने वेलोसिटी वैक्टर से। वेलोसिटी को आप डिफाइन किद्दां करते हैं, देखो एवरेज वेलोसिटी आप डिफाइन की हुई है ऑलरेडी पिछले चैप्टर से। एवरेज वेलोसिटी इज रिटन एज डेल्टा आर वैक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, बिकॉज एवरेज वेलोसिटी की होंगी है बॉडी की कितनी डिस्प्लेसमेंट सी किन्ने टाइम च उन्हें की, दोनों का जस्ट रेशियो, दोनों बस डिवाइड कर देने आप एंड वी गेट एवरेज वेलोसिटी, है ना। डिस्प्लेसमेंट किन्नी की, किन्ने टाइम च की, ये अपनी आ गई एवरेज वेलोसिटी। हुण जे आपां नूं इस चीज़ की वैल्यू चाहिए है, वी नीड द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर वैक्टर। बट डेल्टा आर वैक्टर आप प्रीवियस आर्टिकल से ऑलरेडी डिराइव किया सीगा। डेल्टा आर वैक्टर अपना की आया सीगा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट का अपना रिजल्ट आया सीगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जी कैप, है ना। इत्थे एक चीज़ आप होर कर सकते हैं, डेल्टा आर वैक्टर कैन बी रिटन एज आर जो x2 माइनस x1 है, इनू सीधा आप की लिख दें डेल्टा x, मतलब x से कितना चेंज आया, वो x कोऑर्डिनेट से कितना चेंज आया, वो चीज़ है नाल आई कैप। सिमिलरली y2 माइनस y1 आप लिखता डेल्टा y, डेल्टा मतलब चेंज ही होंगे ना, माइनस करके भी चेंज ही आ रहा है, डेल्टा आप सीधा शो करता। सो y कोऑर्डिनेट से कितना चेंज आया इनटू जे कैप। हुण आपां कोल बिकॉज इस चीज़ की वैल्यू पता है डेल्टा आर वैक्टर दी, इनू इत्थे पुट कर देने, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर वैल्यू नूं आपां इत्थे पुट करन लगे एंड वी गेट एवरेज वेलोसिटी दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। सो दिस वॉज वेरी ईजी। ये आपां कोल एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ चुकी है कॉम्पोनेंट फॉर्म दे विच, देखो आई कैप एंड जे कैप दैट मीनस अपने आ रहे हैं इत्थे क्लीयरली आपां नूं दिख रहा है, बट दिस इज एवरेज वेलोसिटी। इफ वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर आप की करते होंगे जी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है दैट इज नथिंग बट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस एवरेज वेलोसिटी, बिकॉज दोनों चीज़ों से एक ही फर्क होंगे, बस जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना वो जो टाइम होंगे इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, डेल्टा टी बाय द वे, राइट। कितना चेंज आया A तो B तक, A तो B तक जो पार्टिकल पहुंचा तो जेड़ा उन्हें टाइम लिता ना दिस टाइम एवरेज वेलोसिटी की गल करिए तो जिन्ना मर्जी हो सकता इत्थे, बट जदों आप गल करांगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दी, देन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस इन द प्रीवियस लेक्चर्स एज वेल। इंस्टेंटेनियस का मतलब यही है कि एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर टाइम के उत्ते, राइट, लेट्स सपोज आप गल करिए एट 5 सेकेंड्स या फिर एट 6 सेकेंड्स कुछ इदा। सो दैट्स वाई जो भी आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करना है या उन्होंने एक्सप्रैस करना है मैथमेटिकली, ऑलवेज आप इदा ही करेंगे, एवरेज वेलोसिटी जी भी होगी वो तो बस आप कंडीशन लगा देंगे कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। इसका मतलब की है इस टर्म का जो अगे लिखा कि चेंज इन टाइम या फिर जो टाइम लग्या ए तो बी तक जाने के दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, सो आ चीज़ है। हुण इत्थे आप देखो अगेन इस चीज़ की वैल्यू तो आपको आई चुकी है, एवरेज वेलोसिटी आप पुट करते हैं एंड वी गेट लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो एंड इत्थे आपको आ जाएगा डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जी कैप divided by delta t, right? What else we can do? We can do this, b vector is equals to लिमिट दोनों के नाल आप अलग अलग लगा दें, राइट, कुछ इस तरीके नाल लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप। सिमिलरली अच्छा आ चीज़ लिमिट तो इस पार्ट तक लगनी है बिकॉज कर ली है ना। सिमिलरली लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इंटू जे कैप, राइट। हम इतने जरा ऑब्जर्व करो आ चीज़ हैगी की है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा एक्स हैगी डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स एक्सिस से कितनी डिस्प्लेसमेंट सी किन्ने टाइम से की, ये तो बेसिकली वेलोसिटी दस रहा है आपको, बट आ भी वेलोसिटी है हैगी तो आ भी टर्म वेलोसिटी है।
बिकॉज ये भी डिसप्लेसमेंट है। डेल्टा वाई की दस रहा कि वाई एक्सिस दे विच कितनी डिसप्लेसमेंट की, कितने टाइम च की। हुण बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेलोसिटी, दिस इज ऑल्सो वेलोसिटी, तो दोनों को आप सीधा वी तो लिख नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो आपको डिफरेंशिएट करना पऊगा, है ना। एंड फरदर एक आ चीज़ ऑब्जर्व करो, इत्थे भी लिमिटिंग कंडीशन लगी हुई है। जे तो कल्ला डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी होंदा, मतलब ये एवरेज क्वांटिटी की आप गल कर रहे हैं, राइट, दैट इज द एवरेज स्पीड। बट इत्थे बिकॉज लिमिट लगी हुई है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, इट मीनस जी आप क्वांटिटी आ रही है एक इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी है, ना कि एक एवरेज क्वांटिटी। सिमिलरली इधर बिकॉज लिमिट डेल्टा टी अप्रोच जीरो कर रहा है, इत्थे आ क्वांटिटी की एक इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी है, दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ कोर्स, बिकॉज आप ऑलरेडी किया कि अंदर वाली टर्म वेलोसिटी दे रही है, ठीक है। सो देखो आ वाली क्वांटिटी ना आप इदा लिख देने होंगे लिटरली बस वी एक्स है, तो बिकॉज वेलोसिटी है ना, बट केड़ी एक्सिस दे अलोंग है, दैट इज इन द एक्स एक्सिस नाल आई कैप। इत्थे वैक्टर पाने की लोड़ नहीं हैगी, बिकॉज आ सिर्फ मैग्नीट्यूड आप लिखता, डायरेक्शन अपन आई कैप दे ही रहे, ठीक है। सो गलती नाल इत्थे वैक्टर ना पा दियो, ਉਹਦਾ कोई मतलब नहीं बनता। सिमिलरली आ जी क्वांटिटी है, राइट, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, एंड नाल लिमिट लगी हुई है डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, दैट मीन्स दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन द वाई एक्सिस। सो इनू आप कितना लिखांगे वी वाई नाल आप कोई की आ जाऊगा इत्थे जे कैप, आ अपना फाइनल रिजल्ट है, राइट। दिस रिजल्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगे जो प्रोजेक्टाइल मोशन आप यूज करना है वो भी आप इस चीज़ को काफ़ी बार यूज़ करांगे, एंड काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी आ रिजल्ट यूज होगा, राइट। सो ओवरऑल आपको की मिल रहा है इस पर्टिकुलर एक्सप्रैशन तो इनू आप गल कर लें। देखो दिस इज द ओवरऑल वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी गल कर रहे हैं आप, ये ओवरऑल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है बॉडी की, इनू आप किद्दां एक्सप्रैस कर सकते हैं वी एक्स आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस कितना मोशन किया बॉडी ने, कितनी वेलोसिटी नाल किया, ये वो चीज़ आ गई इंटू आई कैप डायरेक्शन दसदी। सिमिलरली वाई एक्सिस कितनी वेलोसिटी हैगी है इंटू जे कैप, बट इट। सो देखो जिस तरीके नाल ओवरऑल जो हुण मैं समराइज करा इस पूरे चीज़ को, बाकी पार्ट मैं रेस करन लगा इत्थे, एक आ पार्ट जो आप लिखा इन्होंने मैं अगेन इतने लिख रहा डेल्टा आर वैक्टर दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। ये सी अपनी डिसप्लेसमेंट है ना। ईवन जो आप गल करिए वो पोजीशन की आर वैक्टर उन्होंने आप कितना लिखा सीगा एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप। ये सारे कॉम्पोनेंट फॉर्म के मैं लिख रहा इतने, राइट। दिस वॉज द पोजीशन, दिस इज द डिसप्लेसमेंट, एंड हुण आप किनू लिखा इदा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नू, दैट इज वी वैक्टर। इट कैन बी रिटन एज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई इंटू जे कैप। सो आ दो तीन रिजल्ट ने जोड़े काफ़ी आप यूज़ करने ने अगे आर्टिकल्स से एंड न्यूमेरिकल्स से। इस प्रॉपरली तुहानू पता होना चाहिए कि किद्दां की चीज़ है। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ये एक होर चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रही है, दैट इज इन्ना क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड आप किद्दां कैलकुलेट करना है। ये भी आई गैस मैं ऑलरेडी प्रीवियस लैक्चर च भी दस्या होया, लेकिन स्टिल देखो फॉर एग्जांपल पहले आप यही गल करते हैं पोजीशन की। जे आप इस आर का मैग्नीट्यूड लिखना है, इनू चाहे तो इदा लिख दो आर वैक्टर बार मोड पा दो, राइट। चाहे आप मॉडुलस नू छड्ड के ना वैक्टर पाओ, सिंपली बस आप इदा एक्सप्रैस करता इनू आर। ये भी वह की है मैग्नीट्यूड, यदी वैल्यू कितनी होगी जो भी कोई भी वैक्टर इदा कंपोनेंट फॉर्म च एक्सप्रैस किया होंगे ना, तो आप लिटरली वो मैग्नीट्यूड को किद्दां कैलकुलेट करते हैं, कॉफिशिएंट्स का स्क्वेयर करके प्लस कर दो एंड उपर अंडर रूट, दैट्स इट। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन किया होया प्रीवियस लैक्चर्स के अपने, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल इतने आर का आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, सो इट कैन बी रिटन एज एक्स का स्क्वेयर, बस आई कैप का कॉफिशिएंट देखना है कि वो मल्टीप्लाई च कौन है। सिमिलरली जे कैप के कौन है वाई, सो वाई का स्क्वेयर। इतों आपको आर का की आ जाऊगा मैग्नीट्यूड। सिमिलरली जो डिसप्लेसमेंट का आप देखना हो मैग्नीट्यूड, तो डेल्टा आर कैन बी रिटन एज डेल्टा एक्स का स्क्वेयर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वेयर। फॉर एग्जाम्पल तुहानू लेट्स सपोज क्वेश्चन गिवन हो सकता कि एक बॉडी एक्स एक्सिस से कितना मूव की, मान लो इदा डेल्टा आर वैक्टर इट इज़ रिटन एज 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप। मतलब एक बॉडी सी जी एक्स एक्सिस के 5 यूनिट मूव होया, ठीक है, एंड वाई एक्सिस के उन्हें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 4 यूनिट्स का।
ओवरऑल ਉਹਦੀ डिस्प्लेसमेंट ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਸਿੱਧਾ 5 + 4 9 ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਲੌਂਗ ਹੈ ਇਹ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਲੌਂਗ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੇ ਡੈਲਟਾ r ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਜਸਟ ਦਿਸ 5 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 25 4 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 16 ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ 41 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਇੰਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ 3i ਕੈਪ + 10j ਕੈਪ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ x ਐਕਸਿਸ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ 3 ਯੂਨਿਟਸ y ਐਕਸਿਸ 'ਚ 10 ਯੂਨਿਟਸ ਅਗੇਨ ਜੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਓਵਰਆਲ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਬਸ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕਰਕੇ 3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 9 10 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 100 ਸੋ 109 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਇੰਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਵਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜੇ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ vx ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਨਾਲ vy ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਟਰਲੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ i ਐਂਡ j ਦੇ ਬਸ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਚੱਕੋ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰਕੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਦੈਟਸ ਇਟ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਇਟਸ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ